have seen there are two types of system. First is the sexagesimal system called as degree measure, and second is circular system called as radian measure. Now in this case we have to discuss about the relation between degree measure and radian measure. Okay, relation between degree measure and radian measure Okay, if you want to describe the relation between degree measure and radian measure, construct a circle with center point O and radius R. अगर अपने को डिग्री मेजर और रेडियन मेजर के बीच का रिलेशन अगर डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक सर्कल निकालना पड़ेगा इस तरह से। तो इस तरह से मैं रफली यहाँ पे एक सर्कल निकालता हूँ जिसका सेंटर पॉइंट है O और रेडियस है R। ठीक है, जैसा कि अपन सर्कुलर सिस्टम में देखे कि 1 रेडियन एंगल सेंटर पॉइंट पे अगर बनाना है तो उसके लिए सर्कल के ऊपर यानी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल यानी सर्कमफ्रेंस के ऊपर इस तरह से दो पॉइंट्स लेना है यानी टेक अ पॉइंट्स A and B ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सच दैट द लेंथ ऑफ आर्क is R. If the length of arc and radius या length of arc and radius are equal, both are same, then the angle formed at the center point is 1 radian. ठीक है, 1 radian it means what? So 1 radian it means 1 radian is the measure of angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. यानी क्या होता है 1 radian यानी? तो 1 रेडियन यानी आर्क का लेंथ और रेडियस का लेंथ दोनों अगर इक्वल है तो सेंटर पॉइंट पे 1 रेडियन इतना एंगल बनता है। अब यहाँ पे अपने को क्या क्या चीज पता है? तो पहला अपने को पता है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू कितना है 1 लेंथ ऑफ आर्क इज R। ओके, लेंथ ऑफ आर्क का लेंथ है R। देन रेडियस यहाँ पे आपको सपोज करना है R और measure of angle AOB is equal to 1 radian. Then in 10th standard you all learned the circle. So the measure of complete circle is 360 degree, whereas the measure of semicircle is 180 degree. Okay. So measure of semicircle is 180 degree and measure of circle is 360 degree. Then we know that center point में जो एंगल बनता है, एंगल formed at the center point of a circle are proportional to the length of the arcs subtended them. अरे सेंटर पॉइंट में जो एंगल बनता है वो आर्क के लेंथ ऑफ आर्क के प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, सेंटर पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो आर्क के लेंथ ऑफ आर्क के प्रोपोर्शनल में होता है। Proportional in the sense comparison of two or more than two ratios. So here I write the measure of angle AOB upon angle at the center point of a circle is equal to length of arc AB upon circumference of a circle. Okay, see once again, center point में जो एंगल बनता है, सर्कल के सेंटर पॉइंट में जो एंगल बनता है वह उसके आर्क के प्रोपोर्शनल होता है। यानी एंगल AOB, measure of angle AOB upon angle at the center point of a circle is equal to क्या लिखेंगे? तो एंगल AOB का अपोजिट आर्क क्या है? AB. So length of arc AB. Then is complete circle का आर्क क्या है? Circumference of a circle. So here substitute the values. Measure of angle AOB is equal to 1 radian and angle at the center point of a circle 360 degree.
is equal to length of arc AB is R, then circumference of a circle is 2 pi R. ओके, और आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं सर्कल के बारे में. अब इसमें 2 1 जा 2, 2 180 जा 360 डिग्री. So 1 radian upon 180 degree is equal to RR itself cancel 1 upon pi. यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. 1 radian into pi is equal to 180 degree. This implies 1 radian is equal to 180 degree upon pi. अब यहाँ पे अगर अपन pi का वैल्यू अगर पुट करते हैं इस तरह से 3.14, राइट. अब इसका डिवीजन करो तो आंसर कितना आता है? 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.29 डिग्री. ओके, देन फर्दर 1 radian is equal to 180 degree upon pi, whereas 1 degree is equal to pi upon 180 radian. So remember these two concept. पहला concept ये है कि 1 radian is equal to 180 upon pi, और दूसरा concept ये है कि 1 degree is equal to pi upon 180 radian. You know, they are very useful data upon which depends the certain examples, certain problems. ठीक है, so remember them. Then here I write this conversion, some conversion. पहला पॉइंट, एंड अगर अपने को डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजर को एंड टू कन्वर्ट डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर then we multiply by, अगर डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो we multiply by pi upon 180. Second point, to convert radian measure into degree measure then we multiply by 180 upon pi. You know, these two concepts are also very important upon which depends the some examples, so remember them. Then you know, 1 radian is equal to, before we have seen 1 radian is equal to 180 degree upon pi. So pi का वैल्यू क्या है? अगर अपन यहाँ पे pi का वैल्यू पुट करते 3.14, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 57.29 डिग्री. अगर डिग्री अगर अपन इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट दोनों पार्ट के अगर अपन सेपरेट करते इस तरह से 57 डिग्री प्लस 0.29 डिग्री, यू नो, एवरी टाइम डिग्री मेजर को मिनट में कन्वर्ट करो और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो. अब डिग्री मेजर को मिनट में कन्वर्ट करना है और मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है, एवरी टाइम ओनली फ्रैक्शन पार्ट को ही डिग्री से मिनट में और मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. अगर डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो इस डिग्री मेजर को 60 से मल्टीप्लाई करो. सेकेंड थिंग, अगर मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो जो भी सेकेंड मेजर होगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करना है. एंड एवरी टाइम फ्रैक्शन पार्ट को ही डिग्री से मिनट में और मिनट से सेकेंड में कन्वर्ट करो. इसके ऊपर भी प्रॉब्लम डिपेंड करते हैं.
तो 1 रेडियन इज इक्वल टू मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ 57 डिग्री 17 मिनट 48 सेकेंड। ये किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये पर प्रॉब्लम में देखेंगे। ओके